इन्वायरमेंट के लिए तो आईटीएंस ने काफी कुछ किया ही है, मतलब पानी तो बचाया ही है हमने। Me and Yashvardhan had the same job and the same flat and now the same company. आंटी आप टेंशन मतलब 1 महीने बाद तो ये अंडरवियर भी दूसरों के बनेगा। So hi guys, welcome to AccuJob's very first podcast. This is Raghav. I'm part of the founder's office here at AccuJob and I did my bachelor's from IT Roorkee. And we'll begin with a quick round of introduction of all the founders. I think we should start with the CEO. Hey, hi guys, this is Yash. I'm one of the founders here at AccuJob. I am born and brought up from Vadodara, Gujarat. Did my schooling there. Fortunately got into IIT Delhi, so came to Delhi for the first time in 2013 to pursue mechanical engineering and spent amazing 4 years in IIT. Graduated in 2017, started working in a analytics consulting job here in Gurgaon. Post 2018, decided to take a plunge and build something from scratch. Started AccuJob in late 2018, and since then it's been a magical 5 years of building this company from to where it is right now. Cool, I think I'll go. Hi guys, I am Vishu Bansal. I come from Meerut and I come from a business family. Actually, I was the first one who took science as the subject during my 11th class and then prepared for IIT, was lucky, got into IIT, so joined IIT Delhi in 2013. We all are from the same batch. Got a job in Gurgaon in a insurance company. I was doing the product manager job wherein my role was to streamline the processes of the call center, right? And then in 2018 we all used to brainstorm ideas and then we started AccuJob and it's been a fun from the last 5 years. Yeah, okay. So, hi, this is Harsh. I'm also one of the co-founders. So, talking about my journey, it's pretty similar, I would say. I was also born in Meerut. Did my schooling there. My father used to transfer from one place to another. So, I did my schooling all over the place, actually. Then again, prepped for JEE, got into IIT Delhi, spent 4 years there. Post that, I also went into an analytics job. Me and Yashvardhan had the same job and the same flat and now the same company. So yeah, I would say we are pretty similar. Yeah, but that's about me. Hi guys, Pranshu this side. So I come from Bareilly and these people have been in the college for 4 years. I was for 5 years. I'm a dual degree student. So per se, I don't have any corporate experience. The only corporate experience I had was at AccuJob, and it's been a wonderful time working with these people, making sure that we are trying to solve the problem each and every day, and always being on the correct track and always sort of correcting each other. I think that is the part that I enjoyed the most. So let's start. Let's begin with the very first question. It's a very boring kind of a question. Why non-medical? So, Yash, आप बताओ. Why non-medical? I think so. Looking at how our education system goes, there were two options. If you're doing well, like या तो biology ले लो और doctor बन जाओ या engineer बन जाओ, and मतलब you realize it and you start. I think वो थोड़ा manly ego भी आने लगता है, तब एक herd बनने लगता है कि these set of people ये engineering करने जाएंगे जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और ये वाले हैं जो doctor बनने जाएंगे, and biology was not something which I particularly was very keen on. So I was like कि ठीक है fair है, and I had honestly इसके पीछे एक दो और insight भी थे. I had a cousin brother who got married, had a son and he was still studying और वो डॉक्टर बन रहा था और स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन. मैंने बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा कि 12 साल और पढ़ाई, 12 साल ऑलरेडी स्कूल में पढ़ना है. सो आई वाज लाइक कि इंजीनियरिंग बेटर लग रहा है. फॉर मी आई थिंक सो मेरे घर में सबके सब CA कर रहे थे. सो आई वॉज लाइक कि मैं CA तो नहीं करने वाला हूँ एंड मेडिकल वॉज नॉट एन ऑप्शन. कभी मैंने सोचा ही नहीं था, डॉक्टर मुझे बनना ही नहीं था. सो एक ही ऑप्शन बचा था आई थिंक, एंड मैथ्स वॉज समथिंग मुझे जो पसंद आती थी. एंड ये सब KVPY और ये सारे कॉम्पिटिशन देते थे तो इट वॉज चैलेंजिंग एंड इट वॉज फन. सो JEE की प्रेप कर लेते हैं बिकॉज इट वॉज चैलेंजिंग. सो अपन ने JEE की प्रेप स्टार्ट कर दी. मैंने तो मैथ्स इसलिए ली थी बिकॉज आई वॉज गुड एट इट and I liked it. And there was no herd mentality. No, just kidding. It was the thing that people were doing. Smart people did take up that. और तब इतना कुछ समझ होती नहीं है, मतलब लिटरली पता भी नहीं था कि आगे क्या होगा इससे. So smart people do this. I thought I was smart, so I did that. On my part,
मोरलेस पापा ने यही सवाल पूछा था, आईआईटी जाना है या एम्स जाना है। तो एम्स वॉज समथिंग जो जिसमें सीट शायद कम है आईआईटी के कंपैरिजन में, तो द फाइनल आंसर फॉर मी दैट्स व्हाई वाज साइंस। या दैट वाज प्रीटी मच इट। उस समय इतनी समझ नहीं होती है, वी आर वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मोरलेस एक्सपोजर नहीं होता है, सो वॉट एवर द पेरेंट्स टोल्ड, वॉट एवर ऑप्शंस दे गिव, आई स्टक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगला तूने क्यों ली थी? पता नहीं मतलब एलन नया नया खुल रहा था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ घर के पास था तो ले ली। तो अगला फॉलोअप क्वेश्चन कि प्रियांशु से ही मैं स्टार्ट करूंगा कि कितनी पढ़ाई करी घुसने के लिए अंदर, क्या कोचिंग डेज की क्या जर्नी थी, घर से कोचिंग करी, बाहर से? यार मैंने घर से ही कोचिंग करी थी एंड आई वाज अ रेगुलर स्कूल गोइंग किड एज वेल। तो स्कूल जाओ, खाना खाओ, कोचिंग जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ो अच्छे से, और फिर दिस इज ऑन रिपीट। हाँ प्रिटी सिमिलर सही है वैसे तो। सो डेफिनेटली जेई प्रेप करने में मेहनत लगती है और डेफिनेटली यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड एंड कमिटेड टू इट। नंबर ऑफ आवर्स अगर बतानी है तो अराउंड मे बी 5 or 6 hours एटलीस्ट। फॉर मी, मैं यार कोटा चला गया था, मेरी चाची कोटा से थी, उन्होंने कहा जेई प्रेप करते हैं तो सब बंसल क्लास से जाते। मैं भी कोटा चला गया था एंड वहाँ पे मतलब देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग, तो मैं भी उनका एक पार्ट था, मैं भी पढ़ रहा था। धीरे धीरे रियलाइज हुआ है तो काफ़ी कुछ करना है। तो देन सो रूटीन वाज लाइक कि सुबह क्लास होती थी, होमवर्क मिलता था, होमवर्क करते थे और पढ़ते ही रहते थे आई थिंक। फिर यही रिपीट पे लगा रहता था फॉर लाइक 2 years। थाउजेंड्स तो कम बोल दिया आपने कोटा में, अब तो लाखों हो गए। अब हाँ, अभी आई थिंक मैं कल ही देख रहा था, एलन ने कुछ रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम आया है फॉर मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सिटी। 1 लाख टाइप्स बच्चे हैं एलन में। यश Yep, I think काफ़ी मतलब पढ़ाई करनी पड़ती थी एंड लाइक आफ्टर 10th यू सडनली रियलाइज ओ दिस इज़ अ वेरी सीरियस एग्जाम और इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है, इतना हाइप्ड है। इतना पहले आइडिया था ही नहीं कि IIT इज सो हाइप्ड एंड सडनली इट हिट्स यू दैट एंड वन फाइन डे आई वाज लाइक कि 11th स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज फेयरली कैजुअल अबाउट IIT प्रेप कि ठीक है मतलब जैसे पढ़ाई करते आए करते रहेंगे। एंड देन वन फाइन डे माई फादर सैट मी डाउन एंड हैड दिस कॉन्वर्जेशन कि मतलब हमने भी तैयारी की थी इस टाइम पे एंड द वे यू आर डूइंग इट आई डोंट थिंक होगा जैसे मेरा भी, उनका भी नहीं हुआ था। ही वेंट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड ही ऑल्सो एस्पायर्ड फॉर IIT इन हिज टाइम, राइट। और वो मतलब परिवार में ही इज़ वन पर्सन हु इज स्टिल डन इंजीनियरिंग। लाइक कि ऐसे नहीं होता है, आई नो इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी। सो यू विल हैव टू आइदर गेट सीरियस और एल्स यू कैन जस्ट एम फॉर अ नॉर्मल कॉलेज। सो तब थोड़ा सा आई हैड अ हिट कि अच्छा ठीक है मतलब आई थिंक आई विल हैव टू पुश हार्डर। एंड पढ़ाई करने लगते हो तब धीरे धीरे आई थिंक ग्रेविटी बढ़ जाती है बिकॉज पीपल अराउंड यू आर स्टडिंग सो हार्ड एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस इज नेवर एंडिंग, दिस सिलेबस इज नॉट लाइक यू आर नेवर डूइंग इनफ एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द इरोडोव के सवाल आसानी से और आपको लगता है कि हाँ यार अभी तो और है और पढ़ना पड़ेगा। सो या डेफिनेटली लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दोज 2 years बट आई डोंट थिंक देयर इज अ शॉर्टकट टू क्लियरिंग जेई। एवरी ईयर इतने सारे लोग एस्पायर करते हैं, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, कोई और तरीका ही नहीं है। मतलब क्लियरली हार्ड वर्क इज द ओनली मुझे वे। एक स्टोरी याद आ रही। सो फर्स्ट टेस्ट जब हुआ था कोटा में तो पहले ऐसा होता था कि यार तुम 90% तो आ ही जाते थे क्लास में जब तुम CBSE के लिए पढ़ रहे हो। और वहाँ पहला टेस्ट दिया और वहाँ 200 में से आए 20 मार्क्स। एकदम से सब हिल गए कि क्या हो रहा है, ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। 90% तो JEE के टाइम्स पे बहुत मुश्किल था। आई थिंक वो RD शर्मा से HC वर्मा जो ट्रांजिशन है ना, उससे सब समझ में आ जाता है कि कितनी मेहनत लगने वाली है। कूल। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, मतलब IIT में मैं भी जैसे गया था, मेरे को भी पता नहीं था मेरा होने वाला है, तो आप लोगों को पता था कि आपका हो जाएगा? यार अगर ऐसे बताऊं तो मतलब पता था इन द सेंस वो जैसे हमारा वो होता था ना, क्या कहते हैं, पेपर दिया आपने और अगले दिन आंसर की आ गई है तो आप एक्साइटमेंट में वही नंबर बना लेते हो कि यार अच्छा ठीक है मेरे 225 बन रहे हैं, और फिर आप 10 दिन वेट करते हो और वो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वो निकालता है कि एक प्रेडिक्टेड रैंक लिस्ट क्या होगी आपकी। अगर आप 220 ला रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपका 500 से 1500 में रैंक आ जाएगा ये वो। तो ये सब किया था कुछ दिनों बाद तक एंड तो एक टेंटेटिव आइडिया था कि हाँ निकल जाएगा, बट क्या रैंक आएगी क्या होगा, दिस इज समथिंग विच इज नो आइडिया, मतलब इसका कोई आइडिया नहीं था। और मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब हुए? आपके भाई बहन भी होंगे, वो बेचारे भी अभी सफ़र कर रहे होंगे थोड़ा तो। हाँ मेरे भाई ने भी दिया था एक्चुअली जेई और उसका नहीं हुआ था और अब वो बिट्स पिलानी में था, तो मेरे पास तो परमानेंट ब्रैगिंग राइट्स है घर पे।
और पेरेंट्स का रिएक्शन मुझे तो रिलैक्स ज़्यादा लगा था कि इसने इतनी मेहनत करी है, चलो इसका हो गया। अगर इसका नहीं हुआ होता तो पता नहीं है क्या करता। मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था, तो मेरा पेपर 1 बहुत ख़राब गया, ऐसा मुझे लग रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब चला गया पेपर 1। मैंने आते ही कैलकुलेट करते हो तुम मार्क्स, मतलब पेपर 2 से आते ही पेपर 1 के आंसर्स आ जाते हैं, तब तक तो मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हो। और वहाँ मैंने देखा तो काफ़ी मतलब ऐसे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। और मैं हो गया सैड, क्योंकि पेपर 2 के आंसर की थोड़ा लेट आती है, राइट। तो मैं हो गया सैड। अब पापा वाज लाइक कोई बात नहीं, मेहनत तो करिए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर फाइनली मैंने पेपर 2 के मार्क्स कैलकुलेट करे, तो उसमें कुछ मैथ्स में 100 मतलब फुल आ गए ऐसा। तो फिर पेपर 2 काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया, इसलिए रैंक आ गई, नहीं तो मेरी तो काफ़ी पटली थी। मेरे फादर का तो यार रिएक्शन ऐसा था कुछ कि ठीक है, अब 18 साल मेहनत करी इस पे, इसे पाला पोसा बड़ा करा, अब जाके कुछ रिटर्न मिलेगा, ये सही जगह जा रहा है। आपके फादर का क्या था, उन्होंने तो खुद एस्पायर किया था। डेफिनेटली, मतलब ऐसा था, जब रिजल्ट आया था तो मुझे नहीं पता चला था पहले रिजल्ट। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत तेज होते हैं, राइट, वो फटाफट निकाल लेते हैं कि किसका क्या रैंक आया हमारे यहाँ, और उन्होंने बता दिया था घर वालों को कि ये रैंक आ गया है। और मैं तो दोस्तों के साथ बाहर मतलब घूमने गया था, क्योंकि पहली बार 2-3 साल बाद ब्रेक था, एंड तब मुझे कॉल करके बताया था। एंड मुझसे तो आई थिंक 10x एक्साइटमेंट घर वालों में था कि अबाउट क्लियरिंग IIT। एंड तब आई रिमेंबर कि वी डिड अ क्विक पार्टी, क्योंकि तब इतना बड़ा न्यूज़ था कि, एंड द पार्टी वाज दैट वी हैड अ ह्यूज नंबर ऑफ डोमिनोज पिज्जाज ऑर्डर्ड, एंड एवरीवन वाज लाइक बिंजिंग ऑन डोमिनोज पिज्जाज। बट हाँ, घर वालों का रिएक्शन वाज वेरी गुड। मेरे केस में I think थोड़ा ऑपोजिट ही था, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा किसी को IIT ऐसे पता नहीं था, है ना। तो उनके लिए ऐसा था कि हाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है इसका जहाँ पे फीस सस्ती है। मेरे ख्याल से बट आई थिंक यू पीपल विल रिलेट कि घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, पर अपने लोगों को एक वो पॉइंट था ना, थोड़ी और मेहनत करते यार और अच्छी रैंक ला सकते थे। तो वो मुझे खुद का रिएक्शन ध्यान है इस पे, पर हाँ घर वालों का रिएक्शन वाज ऑन द मेरियर साइड। चलते हैं आगे, IIT से निकलते हैं, मतलब IIT में जाते हैं हम सबका हो गया। तो IIT में जाते सारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, बट रियलिटी कुछ और निकलती है। तो क्या था एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब कुड बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ। डेफिनेटली ऐसा ही था कि जब हम हॉस्टल में घुसे हैं और घर वाले देख रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ रहना है अब, और हम इनके लिए इतना खुश हो रहे थे कि अब तो इनकी लाइफ सेट है, तो वो भी ऐसे हो गए थे कि भाई डे स्कॉलर बन जाते हैं, यहाँ नहीं रहना। बट विद टाइम हाँ, कॉलेज में हॉस्टल्स की कंडीशंस तो थोड़ी ऐसी हैं, बट विद टाइम डेफिनेटली आदत लग जाती है, एंड अल्टीमेटली तो हॉस्टल लाइफ इज प्रॉब्ली द बेस्ट लाइफ दैट यू विल हैव, राइट। सो आई रिमेंबर ये रिजुअल की मॉम थी शायद, तो पेरेंट्स वर हैविंग अ डिस्कशन, क्योंकि अब हॉस्टल रूम्स तो बहुत खतरनाक थे। तो वो बोलती है हमारे लड़के यहाँ इन साबुनदानियों में रहेंगे क्या? तो हाँ मतलब फर्स्ट रिएक्शन मेरे ख्याल से इट वॉज मोर बेस्ड ऑन द इंफ्रा दैट वी वर सीइंग, और इंफ्रा के नाम पर वी वर सीइंग वेरी स्मॉल हॉस्टल रूम्स। थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि इट्स नॉट अबाउट द हॉस्टल रूम्स और अबाउट द इंफ्रा, इट्स अबाउट द पीपल हु आर कमिंग। मैं और विशु तो डे 1 पे ही मिल गए थे। डे 1 बैंक में दिख गया था ये मुझे बैंक अकाउंट खोल ले आ रहे थे। इसमें मेरे पास भी एक बहुत फनी स्टोरी है यार। तो ऐसा हुआ, आप रूम्स देख लिए हैं, पहले दिन आए अपन हॉस्टल में, तो रूम्स देखे और नीचे कुछ सीनियर्स खड़े थे, ठीक है। तो मम्मी उनके पास गई, मम्मी पूछ रही है कि कैसा होता है, रह लेते हैं क्या सब आराम से, बहुत छोटे छोटे रूम्स है। तो उसने बोल दिया कि आंटी आप टेंशन मत लो, 1 महीने बाद तो ये अंडरवियर भी दूसरों के पहनेगा। मम्मी डर गई एकदम से, मम्मी ले गई कि अभी कुछ दिन बाद रहना तुम यहाँ पे। मतलब यार अगर हॉस्टल स्टैंड पॉइंट से, डेफिनेटली दिस वाज अ रिएक्शन बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज समथिंग यू वुडंट एक्सपेक्ट एंड इमेजिन। बट जो सोच के आए थे IIT, वैसे वो उस स्टैंड पॉइंट से अगर मैं बताऊंगा तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था जैसे, तो द इमेज एंड परसेप्शन ऑफ व्हाट आउटकम विल कम आउट ऑफ IIT जर्नी वाज लाइक कि आप इसके बाद शायद मर्सिडीज के साथ काम करोगे और कुछ फाइन इंजीनियरिंग पीसेस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, और मतलब शायद अगली फास्टेस्ट कार बनाएंगे हम, इस तरह का इमेजिनेशन था when you are entering. But when you actually reach there and understand, you realize that this is a place where you'd probably grow as a person much more, rather than just learning about
जस्ट अकेडमिकली ग्रोइंग ईयर, राइट? तो वो काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंजिंग था आई थिंक IIT आके पहले 2 महीनों में ही वो रियलाइजेशन मिलना, जब सीनियर आगे बोलता है कि डांस प्रैक्टिस करते हैं कि अरे मैं तो IIT आया था शायद। वन अदर थिंग आई वांट टू ऐड, तो बेसिकली आई कम फ्रॉम बरेली, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा तो कंपटीशन था नहीं। 2 ही 3 लोग थे, हमें पता था हमारा कुछ कुछ हो जाना है, एंड वी वर सॉर्ट ऑफ द टॉपर्स ऑफ द स्कूल थ्रू आउट। तो but when you reach IIT and when you interact with people, so many people who have done better than you, who are better than you in some things, in some understanding, तो समझ में आता है कि ना there's a lot of room to learn. अभी ये इतने सारे लोग हैं, सारे लोग ड्रिवन हैं, सब मेहनत करके आए हैं, स्मार्ट लोग हैं, सो देन यू अंडरस्टैंड कि यार ये ज़्यादा बड़ी जर्नी होने वाली है। वो 11th-12th में तुमने जितनी मेहनत करी या जितनी इनपुट दिया है उससे अब कई ज़्यादा इनपुट देना है, बिकॉज यू कैन सी द कॉम्पिटिशन अराउंड यू एज वेल। ये बात सही है ना, ऐसा कहते भी है, कहावत भी है कि तुम IIT में घुसते हो, तुम सोचते हो तुम्हारा IIT में हो गया, IIT में हो गया है। जब तुम्हारे 2-3 महीने खत्म होते हैं तो तुम्हें पता चलता है अरे यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सबका IIT में होगा। आगे स्टार्ट करने से पहले मेरी भी सेम ही हॉस्टल की स्टोरी। मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, ये मग देख के मेरे को याद आया। वो इंडियन टॉयलेट्स थे मेरे बिल्कुल रूम के बगल में, तो वो तो बिल्कुल मेरे को प्रैक्टिकल दिखा रहे थे, मग्गा लेके जाना है सुबह। तो वो तो काफी खुश हुए थे कि चलो इसी बहाने पतला होएगा थोड़ा। तो IIT में मतलब वही एक तो होता है जाने से पहले कि रैगिंग इज अ वर्ड दैट इज देयर, राइट? किसी भी कॉलेज में जाने से पहले तो रैगिंग हुई थी, क्या सीन था? मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारी रैगिंग नहीं हुई थी। हम लोग सीनियर्स की रैगिंग लेते थे कि हिम्मत है तो रैगिंग लेके दिखाओ। आई थिंक हमारे टाइम पे वाइब थोड़ी सी चेंज हो गई थी, क्योंकि सडनली थिंग्स हैड बिकम स्ट्रिक्टर एंड देयर वाज दिस वाइब कि यार रैगिंग में पकड़े गए तो बहुत बुरा होता है सीनियर के साथ, ये वो। बट nonetheless we still have stories because seniors are seniors, right? So हम लोग जब आए थे तो basic ragging हुई थी, in the sense कि यार there's this senior girl standing there on the orientation induction day and just go there and propose her and stuff like that, right? कि उनको ये बोल के आना है आपको, या एक senior है जो थोड़ा badass सा दिख रहा है उसको जाके गाली दे के आनी है आपको। तो वो बहुत बेसिक थी जो हम कर देते थे, एंड वी आर लाइक कि ठीक है ये तो कोई रैगिंग नहीं है, तो क्या ही है। बट फिर धीरे धीरे हमें स्टोरीज बताई गई थी कि रैगिंग क्या क्या होती थी, देन वी वर लाइक कि ओ ये तो होती है। फिर वन फाइन डे इन आवर हॉस्टल, ओके आई विल टेल दिस स्टोरी, आई डोंट नो अगर ये क्रॉप करनी होगी या नहीं बाद में, बट तो ऐसा हुआ था कि यार मेस एरिया था जहाँ पे डांस प्रैक्टिस करा रहे थे फ्रेशर्स को, एंड वार्म अप करा रहे थे पहले कि भागो, राइट, फॉर 15 मिनट तक भागना है। और अब सीनियर आया एंड द रूल्स ऑफ द गेम विच ही सेट अप वर भागते रहना है, जो लास्ट होगा जब टाइमर स्टॉप होगा सबसे पीछे, तो वो लास्ट 2 लोग जो हैं वो क्विज खेलेंगे, उनके साथ क्विज राउंड होगा। अब क्विज में क्या है कि बजर होगा, and the buzzer is essentially both of the people holding each other, right, some body part, and hitting each other hard on that body part, and whoever makes that noise essentially is the first person to give the answer to that question. एंड ये रैगिंग जब हो रही थी तब पता नहीं what transpired, and सडनली रात को 10:30 बजे हॉस्टल का वार्डन राउंड पे आ गया, एंड everyone realized and the senior got super nervous and वहाँ से भाग गया वो, right, and fortunately उन लोगों के साथ ज़्यादा कुछ रैगिंग हुई नहीं उसके बाद, but we were about to witness what so called ragging incidents are. और इसमें एक और रूल भी आ गया था, आई थिंक जब हम पहुंचे थे तो सेकेंड ईयर वाले जो सीनियर्स थे उनकी डायगनली ऑपोजिट विंग होती थी फर्स्ट ईयर से, तो जिससे कि वो लोग, क्योंकि वो लोगों को सबसे ज़्यादा लगता था कि अभी हम सेकेंड ईयर में आए हैं, हम सीनियर्स हैं तो हम इनकी रैगिंग लेंगे, तो उन्हें डायगनली ऑपोजिट रखते थे, उन्हें तो सबसे हमारे दूर hostel में रखते तो थे। काफी, हाँ। पर मोरलेस मेरे ख्याल से तब तक ना हमारी सीनियर्स को भी रैगिंग लेना आता नहीं था, उनकी भी रैगिंग हुई नहीं थी। अब बाय द टाइम आई वाज मूविंग आउट, क्योंकि हमारी खुद की कभी रैगिंग नहीं हुई, तो हमें पता ही नहीं रैगिंग लेते कैसे। रैगिंग इज वन लर्निंग ऑब्वियसली एट IIT। और क्या लर्निंग्स रही ओवरऑल 4 साल के पीरियड में और आपके 5 साल के पीरियड में? अलग अलग टाइप की लर्निंग है, तो बेसिकली यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर थिंग्स कि व्हाट इज अ स्ट्रीट प्ले करना, स्टेज प्ले करना, फाइन आर्ट्स, डांस, इवेंट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली पढ़ाई होती रहती है साइड बाय साइड, पर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो जाता है बिकॉज दीज हेल्प यू इन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, एंड यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हॉस्टल्स एज वेल। तो इन IIT दिल्ली पर से हॉस्टल कल्चर इज़ वेरी प्रिवेलेंट कि मैं इस हॉस्टल का हूँ, मैं हॉस्टल के सारे लोगों को जानता हूँ, पर इट्स मोर और लेस लाइक बीइंग इन अ शेल, करेक्ट? सो व्हेन वी गो आउट फॉर दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज
इट वॉज प्रिटी श्योर कि वहाँ जाके तुम 4 और लोगों को जानोगे, वो कैसा सोच रहे हैं वो जानोगे, यू विल टेक मोर लर्निंग्स फ्रॉम दोज पीपल हाउ दे आर प्लानिंग दीज थिंग्स, बिकॉज इतना कुछ आर्ट्स में अच्छे नहीं होते हम लोग, है ना. IIT दिल्ली पीपल मीन्स IIT पीपल, दे वर नॉट सो गुड इन आर्ट्स बिकॉज दैट इज नॉट द एरिया दैट दे वर वर्किंग अपॉन फॉर so long time. But over and over iterate कर करके, interact कर करके, सीख करके, self learning process समझना बहुत अच्छे से आ जाता है कि कैसे खुद से कैसे सीखनी है चीज़ें, how to make sure कि whenever you are taking up any new challenge or any new thing you want to learn, you have to make sure कि वो खुद ही सीखना है तुम्हें. एक बात ये भी है कि अब जैसे IIT में तुम जाते हो तो तुम लोगों को जज कर लेते हो कुछ कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा. वो तुम्हारी पूरी जजमेंट फॉल्टर कर जाती है जब तुम उस बंदे को देखते हो कि वो सारे टाइम मिला के क्या क्या कर रहा है. मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हो जो 12 बजे उठे, क्लास ही नहीं लगा रहा, 5-6 बजे तक कुछ नहीं किया, उसने चिल किया, पर तुम उसके बाद अगर उसे फॉलो करोगे तो तुम रियलाइज़ करोगे कि अरे ये तो पूरी रात डांस की प्रैक्टिस कर रहा है और रॉन्डेवू में फर्स्ट मार रहा है. तुम ये रियलाइज़ करते हो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं, और वो अकेडमिक्स नहीं होती मोस्ट जनता के लिए, बट हाँ वो उसमें अपनी पूरी मेहनत तो लगा रहे होते हैं. और वो भी होता है ना यार, आई थिंक जैसे रॉन्डेवू करा रहे हैं मान लो, तो अब तुम 1.5-2 करोड़ का बजट मैनेज कर रहे हैं ये 20-20 साल के लोग, राइट. मतलब काफ़ी कुछ सीख जाते हैं कि किसे कौन से इवेंट में कितना आपका बजट होना चाहिए, कैसे कैसे उसे फ्लो करना चाहिए पैसा, और इतने सारे इवेंट्स करा रहे हो आप उसमें, काफ़ी कुछ सीख जाते हो आई थिंक उस टाइम पे जब आप इवेंट्स करा रहे होते हो. बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज़ आ रहे होते हैं, प्रियांशु बेटर बता पाएगा, इसने बहुत बार कराया है. So, Rendezvous is the cultural fest of IIT Delhi. और उसमें फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी ही करती है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की अमाउंट लाना, मार्केटिंग करना, उसकी पब्लिसिटी करना, इवेंट्स कराना, क्या क्या इवेंट्स होंगे, कौन आर्टिस्ट आएगा, कौन आर्टिस्ट नहीं आएगा, उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, बिकॉज दे आर 80,000 फुटफॉल उस पर्टिकुलर कल्चरल फेस्ट में, और 40 लोगों की एक टीम होती है, उसके अंदर 200 लोग और होते हैं, एंड ऑल दिस पीपल आर द कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स ओनली. तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, सब बस एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. फाइनेंसेस क्या होते हैं पहली बार वैसे ही समझ में आया कि अच्छा इनफ्लो आउटफ्लो होता क्या है, हमें ओवरऑल एक इनफ्लो मेंटेन करना है ताकि हम इतने सारे आर्टिस्ट ले पाएं या इतने सारे इवेंट्स करा पाएं, या टू मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हु इज कमिंग टू विजिट दिस पर्टिकुलर फेस्ट इज हैविंग अ गुड टाइम. मतलब बाकी सब लोगों ने, जैसे प्रियांशु ने रॉन्डेवू का बताया, यश, विशु, आप लोगों ने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए, किस में एक्सेल किया? तो मैं पर्टिकुलरली थिएटर साइड पे काफ़ी इन्वॉल्व था. मतलब फर्स्ट ईयर में स्ट्रीट प्ले लगाया था, सीनियर्स ने ज़बरदस्ती हॉस्टल से बुलाया था कि नीचे आओ, चलो प्रैक्टिस करनी है, हमें करना है ये काम, हॉस्टल के लिए करना है. हॉस्टल वाली जनरेट करी थी, तो उससे स्टार्ट हुआ था. और पहली बार मुझे तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगा था. ऑब्वियसली शुरू में इनर्शिया था, और एक ऐसी चीज़ थी जिस पर कभी मैंने सपने में सोचा भी नहीं था कि मैं ये करूँगा पूरी लाइफ. बट हाँ, सीनियर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है IIT की लाइफ में. उन सीनियर्स ने मुझे इनिशियली ज़बरदस्ती कराई एक चीज़. उसके बाद आई वुड से कि स्पेसिफिकली IIT में जितना मैंने एन्जॉय प्लेस में किया है, जितना प्लेस से मेरे जितने दोस्त बने हैं, दोज आर सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप्स आई विल हैव इन माय लाइफ. तो मैं भी आई थिंक रॉन्डेवू काफ़ी कराता था, और अपन मिले भी वैसे ही थे एक्चुअली. मैं प्रियांशु से रॉन्डेवू के थ्रू ही मिला था. वी वर पार्ट ऑफ द मार्केटिंग टीम इनिशियली. अपन फंड्स रेज करते थे, ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग आती नहीं थी उस टाइम पे, और बड़े बड़े लोगों को कॉल करना होता था और पैसे मांगने होते थे, और इतनी बड़ी बड़ी डील क्रैक हो जाती थी, तुम्हें आइडिया नहीं होता था कि पार्ले क्रैक हो गया जिसने 10 लाख रुपए दे दिए हैं तुम्हें एकदम से. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता था वो. मैं पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स साइड पे इंक्लाइंड था, तो यूज टू प्ले लॉन टेनिस अलॉट. काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, मतलब प्लेइंग लॉन टेनिस फॉर दोज 4 years. ऑल्सो प्लेड फॉर IIT इवेंट विद द टीम. काफ़ी बढ़िया वाइब रहता है इफ़ यू गो टू इंटर IIT टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा. उसके अलावा विद इन कॉलेज ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम अ लर्निंग स्टैंड पॉइंट सबसे ज़्यादा लर्निंग मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ तो आसपास के लोगों से मिली है, राइट. यू कम फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस एंड देन in my hostel now, my friend circle, I look at it, I have friends who come from Bihar, who come from Rajasthan, who come from South India, who come from Kashmir also, right. And उन सब की लाइफ स्टोरी अब पता है मुझे, उन्होंने क्या देखा है, उनके क्या कल्चर्स रहे हैं, वो कैसे ब्रॉट अप हुए हैं, उनका थॉट क्या है टूवर्ड्स लाइक गोइंग फर्दर इन देयर लाइफ्स, राइट. एंड एवरीवन आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ मेटा डिस्कशंस विद ईच अदर अबाउट पर्सपेक्टिव्स ऑफ योर लाइफ, राइट. और वो काफ़ी तुम्हारा दिमाग खोल देता है.
कि okay, yeah, this is a fair lens and this is how this completely makes sense for someone if he is completely aligned with that particular chain of thought, right? और उसके अलावा I would say IIT आने के पहले you haven't really coordinated with people to get a task done, right? You've never done that. आप हमेशा खुद अपना you've been assigned a SOP कि ये पढ़ना है, ये करना है, this is your schedule like, and now you suddenly land in a place where you have independence कि तुम्हारा time है. You figure out how do you want to make the most of this time. What do you really want to do out of that time, right? And when you execute and start working with people, that is the first time where I learned ki how can you actually make a team, work as a team, get shit done. And I think those learnings were very, very helpful going ahead also. Cool. And मतलब एक क्वेश्चन तो है ही, 4 साल में कितनी पढ़ाई की मिला के सब में? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें फर्स्ट ईयर में आते हो तो थोड़ा प्रेशर फील होता है कि अरे यार सब लोग पढ़ाकू लोग होंगे, ये वो प्रेशर है, पढ़ लेते हैं थोड़ा. बट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है और तब तक आप रियलाइज कर जाते हो कि ठीक है यार, थोड़ी कम भी करते हैं अगर तो 7 पॉइंटर 8 पॉइंटर तो हम लैंड कर सकते हैं, राइट? कि एवरेज कर सकते हैं हम. फिर सेकेंड सेमेस्टर तक थोड़ा और रिलैक्स कर जाते हो कि ठीक है क्लास नहीं जाते हैं अगर आधी, तब भी नोट्स मिल जाते हैं हमें और पढ़ाई हो जाती है. कोई एक तो होगा ही हॉस्टल में जिसका डोर मैं नॉक करूंगा रात को और वो मेरे को फटाफट बता देगा. बाय द टाइम यू रीच 4th ईयर तुम सिस्टम को काफी हद तक क्रैक कर चुके हो. तुम्हें पता है प्रॉक्सी कैसे लगती है, तुम्हें पता है कौन से प्रोफेसर के साथ पंगा नहीं लेना है, तुम्हें पता है कौन से प्रोफेसर की लैब अगर मिस की तो वो आपका ग्रेड डाउन करेगा ही करेगा. एंड यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग ऑन ऑल दोस फ्रंट्स बाय दैट टाइम. तो मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट. तो जब हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, राइट, बिल्कुल फर्स्ट वीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो सुबह उठते हो तो बाथरूम के आगे भीड़ लगी है लेजिट, क्योंकि सब नहा के जा रहे हैं, है ना. और ये फर्स्ट वीक है. फर्स्ट वीक, हाँ, फर्स्ट मंथ के बाद तुम देखोगे तुम कितने बजे भी उठो खाली पड़ा रहता है, बाथरूम सूखा होता है. हाँ, कोई नहा के नहीं जाता. उसके बाद सबको लग जाता है कि यार ठीक है चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ये भी तो है कि फर्स्ट ईयर में तुम आते हो, तुम सब साइकिल खरीद लेते हो. टाइम पे क्लास जाएंगे. 1 किलोमीटर दूर है जहाँ क्लास होनी है हॉस्टल से, साइकिल से जाएंगे सुबह सुबह. और वो साइकिल फर्स्ट सेमेस्टर में यूज हो गई मैक्स 1-2 बार तो हो गई, वरना उसके बाद तो तुम उसे छूते भी नहीं हो. और ये सारी साइकिल ना बिक जाती है, मतलब दे बिक. ऑक्शन. हाँ, ऑक्शन होता है उनका सबका. इन्वायरमेंट के लिए तो IITians ने काफी कुछ किया ही है, मतलब पानी तो बचाया ही है हमने. डेफिनेटली. बट आई थिंक पढ़ाई के स्टैंड पॉइंट से अगर तू पूछ भी रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि again curriculum should be made better in the sense like what they are teaching is already like legit stuff. Of course how they are teaching can be improved, of course. बट कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ कोर्सेज हमेशा ऐसे निकल आते थे विच वुड एक्चुअली स्ट्राइक यू कि हाँ यार इसमें कुछ काफ़ी सीखने को है. दे आर मेकिंग यू जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट इट ऑल्सो. एक आध प्रोजेक्ट ऐसे बनाया था जो हम लोगों ने जब तब वो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स थे, सो वी हैड टू जस्ट थिंक ऑफ न्यू आइडियाज. और हमने वो प्रोजेक्ट बना दिया विथ नॉट अ लॉट ऑफ इंटेंट, आई वुड से. वी जस्ट गॉट इट डन फॉर द सेक ऑफ दैट कोर्स. बट द प्रोडक्ट वॉज, आई टेल यू दैट. सो वी हैड मेड अ पिज्जा कटर. ठीक है, पिज्जा काटना पेन होता है, साइज क्या होनी चाहिए, कितने पीस कटने चाहिए. तो हमने क्या किया, there's a circular disc, right, which has slots in it. You can replace it to 6 slots, 8 slots, and you can change the size of the circle, and you just have to press it on the pizza so it gets cut evenly. And this same product we saw after a couple of years in an Instagram ad that this is being sold in the market. मैं बोला कि यार सही है, मतलब if we genuinely put in the effort and fight, हम लोग भी कुछ यहाँ से meaningful बना सकते हैं. One other thing, it depends on the branch to branch as well. So I am from biochemical. So basically मैंने स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन होता है, उसमें सीनियर्स आते हैं, तो मैंने सीनियर से पूछा कि ये डिग्री खत्म करने के बाद मैं कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूँ या मैं क्या करूँगा, या इस पर्टिकुलर फील्ड में हाउ कैन आई प्रोवाइड मोर इम्पैक्ट. तो उन्होंने कहा कि ये डिग्री खत्म होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुम PhD करोगे, उसके बाद तुम पोस्ट डॉक करोगे, देन यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर फील्ड. आई डिडंट कम अप टू IIT विद थिंकिंग कि अब PhD भी करनी है, उसके बाद पोस्ट डॉक भी करनी है. तो कहीं ना कहीं उससे ये समझ में आया कि ये पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करके भी आई वोंट बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. तो फिर हाँ, वो 1/10 वाली पढ़ाई वाली बात फिर सच हो गई. तो डिग्री खत्म होने की बात की आपने, तो 4th ईयर सबके लिए काफी क्रूशियल होता है, राइट? आपके केस में 5th ईयर की प्लेसमेंट्स होती है, तो सबकी क्या प्लेसमेंट स्टोरीज हैं, कैसे प्रेप किया, कहाँ जॉब लगी और कितनी देर काम किया? हाँ यार, मतलब आई थिंक IIT के टाइम पे मतलब इन हाइंडसाइट वी फील इट, तब यू आर अ पार्ट ऑफ दैट रैट रेस, तो आपको वो प्रेशर, कॉम्पिटिटिव प्रेशर फाइनल ईयर में काफ़ी फील हो जाता है दैट एवरीवन इज गोइंग टू वाई फॉर प्लेसमेंट्स. एंड द एटमॉस्फियर सेटअप फॉर प्लेसमेंट्स इज
pretty, I would say, high intensity, right? Because it's 20 days of placements, 1st of December to 20th of December, and companies will start coming in from the first day. And in terms of how people prepare for placements, I think थोड़ा सा skewed है वो कि senior से pass down है कि यार the best companies are consulting companies, and you should, like, for non-technical people, for maybe programming related folks, कि HFT firms are the go-to place and you should be fighting for those jobs. एंड ये थोड़ा सा बना हुआ है एक ट्रेंड सा, जो सब लोग, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं होता, अगेन आइडिया नहीं होता कि क्या बेस्ट चीज़ है परस्यू करने के लिए, पीपल गो फॉर द कि ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि बेस्ट है उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं. सो अगेन आई बीइंग नॉट सो इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर प्लेसमेंट्स, अगेन उसकी वॉल्यूम भी अगर मैं बताऊं तो आउट ऑफ आवर बैच ऑफ 105 ऑड पीपल, आई थिंक 15 से 20 लोग मैक्स हैं जो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब रोल्स में गए थे. बाकी सब फिर कंसल्टिंग, नॉन टेक्निकल, एनालिटिक्स बेस्ड प्रोफाइल्स इनके लिए प्रिपेयर कर रहे थे. तो माहौल धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता जाता है, कंपनी स्टार्ट कमिंग इन, एंड फाइनली डे 4 आई गॉट प्लेस्ड, एंड देन यू आर लाइक कि बहुत बढ़िया. उसके बाद द फीलिंग ऑफ रिलीफ वॉज मच हायर देन एनीथिंग एल्स. अपने टाइम पे वो भी तो हुआ था कि 20 दिन पहले ही डिमोनेटाइजेशन हो गया था. कैंपस स्टार्ट हो रहा था 1 दिसंबर को, और शायद 8 नवंबर कब हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ डिमोनेटाइजेशन हो गया. तो कैंपस पे कंपनीज भी कम आई थी, काफ़ी कम आई थी उस टाइम पे, क्योंकि सब लोग शायद टैकल कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन से. और इससे तो मेरे पापा ने तो कहा था इतनी कोई टेंशन नहीं मत ले, कि यहाँ पे 100 कंपनियाँ आ रही हैं और 1000 बच्चे हैं, बाहर लाख कंपनियां हैं और तू अकेला है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है. तो प्रॉब्ली IIT में द टाइम आई थिंक कि ये मैंने गलत तरीके से स्पेंड कर लिया या ये सही नहीं हुआ. जो मैं पर्सनली अगर दोबारा करूँगा तो जो एक पार्ट चेंज करूँगा ना, वो प्लेसमेंट साइड पे ही है. आई थिंक उस टाइम पर जितनी इंटेंसिटी और जितना प्रेशर होता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो जाते हो. तुम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो और तुम्हें दिखता ही नहीं है कि आगे और कुछ भी है. इस चीज़ में मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इस चीज़ को मैं इतना हाईली देख रहा हूँ, जबकि ये उतनी वर्थ इट नहीं है. तो और ये तुम IIT के निकल के पहली जॉब पे 6 महीने में रियलाइज़ कर लेते हो. पर फॉर मी बिकॉज 5 years थे, तो 1 साल इनका प्लेसमेंट जब चल रहा था, आई वॉज एन ऑब्जर्वर. मैंने ये सब देखा, अच्छे से समझा कि पहले के 1-2 दिन स्ट्रेस नहीं लेना. मोरलेस डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप्स कि उस समय वहाँ जाना है. अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कहाँ फिटिंग रोल है, किस हिसाब से शॉर्टलिस्ट होने वाली है, एंड give that particular interview and make sure that you are being candid over there, you are being truthful. जो भी जिस भी वजह से तुम्हारे अगर CGPA कम है या POR कम है, POR is position of responsibility, या scholastic achievements कम है, तो tell them, let them know about you, how you think, and it does it. तो हाँ, तो पर देखा है मैंने ये जो 4 ऑफर रिजेक्ट हुए, मैं बाहर ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ अपने यहाँ ये लोग आते रहते थे एंड वी वर ऑलवेज लाइक पार्टी. अभी ये बोलेगा सेलेक्ट हो गया, अभी पार्टी पे चलेंगे. मैनी टाइम्स इट वाज लाइक नहीं हुआ. तो वो ओवरऑल वो दिन 1-2 दिन का वो पीरियड अगर जिसका नहीं हो रहा है, इट्स वेरी सैड फॉर हिम. बट उसके बाद काफ़ी फन स्टार्ट हो जाता है यार. जो फाइनल सेमेस्टर होता है, टू मच फन. आई थिंक तुम नई क्लास जाते हो, कोर्सेज भी बहुत कम होते हैं शायद जो तुम्हें करने होते हैं, और सिर्फ फन चल रहा. नहीं, पर फॉर ऑल द व्यूअर्स ऐसा नहीं करना. तुम लोग जाके थोड़ी मेहनत करना, फाइनल सेम में भी कुछ करना. थोड़ा फन बताओ क्या होता है. मतलब बस टाइम पास कर रहे हैं लोग बैठ के, कुछ नहीं है करने को, क्योंकि तुम फाइनल सेमेस्टर में आ गए हो. अब मतलब 6 महीने बाद तुम्हें डिग्री मिल जाएगी. डिग्री मिल जाती है जनरल जनता को, मतलब सब निकाल लेते हैं और कुछ नहीं है करने के लिए. अब मतलब हमारे यहाँ जैसे कुछ वो चलता था कि अब फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने जूनियर्स को जो नेक्स्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दे के जानी है, राइट. अब उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, तो सही टाइम पास था. मतलब वो 4-5 महीने तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हो. तो काफ़ी फ़न है IIT में. जो ये लास्ट सेम होता है, पॉलिटिक्स चल रही होती है, तो उसमें ऐसा होता है, अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो 13 हॉस्टल्स हैं, सबके अलग अलग वोटर्स हैं, और कुछ 5-6 बोर्ड्स हैं IIT में, कल्चरल, स्टूडेंट वेलफेयर और डिफरेंट बोर्ड्स हैं, और वो लोग वोट करने वाले हैं. एंड फाइनली कुछ 5-6 लोग बनेंगे, फिर वो अपनी टीम बनाएंगे. तो इसमें सब पॉलिटिक्स है प्रॉपर, कि मेरे हॉस्टल का बनेगा और उसने वोट डाला है तो उसे मनवाऊंगा, ये सब जो भी है ना. जब फर्स्ट ईयर में तुम जाते हो ना, तुम बहुत डरे हुए होते हो कि अभी दिस इज अ न्यू प्लेस, करना क्या है. सेकंड ईयर में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डिपार्टमेंट. थर्ड ईयर में थोड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाता है क्या होने वाला है. फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में यू आर वेरी अफ्रेड बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स. अब प्लेसमेंट हो गई,
अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं बचा है, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और उसके बाद इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. And what Vishu is talking about politics, so we call it Poltu in IIT, and it's a very peaceful thing where people sit together, discuss, and how the votes are going to be here, there, who is going to be, president of a particular board and things like that. No, it's not that straightforward, to be very honest. There's a lot of math which people apply. There's a lot Yes. of strategy which people get into, honestly. Right? People are like कि यार ऐसे अलायंस बनाते हैं उन हॉस्टल्स के साथ, इधर से 13 वोट पड़ेंगे, उधर से 16 वोट पड़ेंगे, सब मैथ करके बैठते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं कि उस अलायंस में मैं अपना एक हॉस्टल बिठा देता हूँ और वो इधर डाल देगा, बट उस अलायंस को अभी भी लगता रहेगा वो उस अलायंस का पार्ट है. बिकॉज अगेन people are in final semester, they have a job in their hand, they know they are going to pass their final courses and get a degree, so there's not a lot to do. So वही खाली दिमाग शैतान का घर कि कुछ तो करते हैं. आई थिंक काफी बात हो गई आईटी की. Yes. थोड़ा आगे चलते हैं. मतलब यू गाइस ऑल, आई थिंक यश एंड हर्ष गॉट प्लेस्ड इन द सेम कंपनी, राइट? एंड यू गाइस आल्सो वर्क. तो एक जॉब का क्या एक्सपीरियंस था, कितने देर काम किया? Definitely, I think अच्छा experience था यार. First job is definitely a good experience because you definitely get to learn a lot. You're coming from a place where you have literally no responsibility. You have complete freedom of time. कुछ भी कर सकता हूँ, अपना टाइम है, कोई कुछ पूछने नहीं वाला है. Say getting responsibility, getting ownership, getting into a corporate structure, understanding that okay, this is real business where there are actual customers, you have a task to get it done. Plus, I think the kind of people you get to work with, the systems, the processes they have designed, everything is new for you. So मेरे केस में आई थिंक थोड़ा लकी था मैं कि मेरा जो बॉस था वो आईआईटी का सीनियर ही था. 2008 ग्रेजुएट था, तो उसने काफ़ी आइडिया दे दिया था कि अब तू बाहर आ गया है और रियलिटी चेक लग रहा है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे, अब कुछ रियल चीज़ें चल रही हैं और वो सॉल्व करनी है तुझे. और उन्होंने काफ़ी ऐसे ग्राउंड पे लाने के लिए, सो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज एक्चुअली कि जो कॉल सेंटर था, सो आई वॉज द प्रोडक्ट मैनेजर एट केयर इंश्योरेंस. अभी केयर हो गया, पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था. तो आई वॉज द प्रोडक्ट मैनेजर देयर. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि जो कॉल सेंटर का CRM है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है और थोड़ा जो कॉलर्स थे उनके लिए थोड़ा और ईजी बनाना है उसे, राइट? तो उन्होंने फर्स्ट मुझे कहा कि तुझे अब 5 सेल करनी है. पहले 10-15 दिन मेरी इंश्योरेंस की ट्रेनिंग हुई ऑब्वियसली, जो कैसे बेचते हैं क्या करते हैं. देन नेक्स्ट 1 month आई वॉज सेलिंग द इंश्योरेंस, कस्टमर्स को कॉल करता था और बेचता था. तो काफ़ी हार्ड हिटिंग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि तुम आईआईटी से निकलो, तुम्हें लगता है कि हम ऐसे कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, सूटकेस लेके जाएंगे, बट ऐसा नहीं था. रोज जाके प्रॉपर कॉलिंग. उन्होंने कहा जब तक 5 नहीं होगी तब तक ये नहीं करेगा, क्योंकि तुझे वो लाइफ जीनी है पहले उनकी जिनको इम्प्रूव करना चाहता है. एंड एक्चुअली इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल व्हेन आई वॉज एक्चुअली रिवैम्पिंग दैट CRM. तो बहुत हेल्पफुल था क्योंकि मैंने वो 1 महीने तक वो इंश्योरेंस कॉलिंग की थी, बेच रहा था मैं, कस्टमर्स को थोड़ा बेटर समझ रहा था, कॉलर्स को प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आ रही थी वो देख रहा था. तो मेरा जो 1-1.5 साल था, इट वाज काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था. So for me also, I joined EXL after I graduated from IIT. EXL में my work was around building tools using ML for figuring out what the claims would be, what the clauses would be in a particular accident. So it was a technical work, deeply technical. I had to program an entire model for it, and that model was actually found out to be pretty good. It was used in the pitches to more clients as well. So contribution side पे I think I was able to make substantial impact in my first job as well. But थोड़ा सा the reason I ultimately quit within a year was because I still found it to be not as challenging as I would want, because दिमाग में बहुत हवा होती है तुम्हारे कि यार मैंने इतना कुछ किया है, I have cracked IIT as well, I've studied there as well, so I want to do bigger things in life and I want to create an impact at a bigger level. And I realized that that particular job didn't really give me that, and not only that, the impact was so far away from me that I didn't really have any opinion on whether that was something that was actually adding value or not. So वो वाला एक मिसिंग पीस था जो रियलाइज़ किया, और इसी वजह से
wanted to get into entrepreneurship, wanted to actually work in a setting where I am able to change lives and see the impact myself. या सो फॉर मी आई थिंक द 5th ईयर जब ये लोग सब जॉब कर रहे थे एक साल, तो मैं कॉलेज में ही था. ये लोग सब साथ में रहते थे एंड माई वीकेंड्स वर ओवर देयर इटसेल्फ. ठीक है, तो बाय आई थिंक बाय मार्च इन लोगों को ये रियलाइज होने लगा, एंड बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन डिस्कशंस विद देम, क्योंकि हर वीकेंड वहीं पार्टी करने जाता था मैं पर से. बट देन वी यू नो दीज पीपल टोल्ड मी दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट, दे थिंक दैट दे आर नॉट ग्रोइंग एवरी डे. तो उसके बाद वी स्टार्टेड हैविंग अ डिस्कशन अराउंड द सेम. मई में मेरी ज्वाइनिंग थी कंपनी में, मैं गया, आई वर्क फॉर 5 days एंड बाय द टाइम ऑफ मे वी वर प्रीटी श्योर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. सो आफ्टर 5 days आई रिजाइंड and then we started going to we started the market research and everything. So मेरे पास learnings नहीं है क्योंकि 5 दिन में ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया मैं. हाँ, पर एक clarity मुझे वो 5 दिन में भी I was very clear कि जो इन लोगों ने मुझे बताया कि क्या क्यों लगा इनको कि इन्हें impact नहीं दे पा रहे हैं या they are not doing something जो इन्हें समझ में आया कि ये कैसे किसी का भला कर सकता है या how is that creating anything. And post that I was very sure because we already had a discussion by then कि yeah we are going to start it, क्योंकि हाँ अगर ये लोग मना कर देते मैं रिजाइन करके बैठ जाता तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाता. बट मतलब आपने जैसे सिर्फ 5 दिन काम किया है राइट, एंड आईटी में जाते हो तो पेरेंट्स का होता है कि चलो पैसा तो कमाने वाला है लौंडा जाके उधर काफी. तो क्या था मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन कि विद इन 5 days यू क्विट? एंड सबके लिए एक क्वेश्चन है कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? विद इन 1 year ऑल्सो क्विटिंग इज स्टिल अर्ली. So I am a single child, so it comes somewhere from there because my parents, I think they have given me a lot of freedom. They believe in me. और पापा खाना खा रहे थे, पोकर फेस था पापा का, खाना खा रहे हैं आराम से. मैंने बोला कि हो गया मेरा, मतलब मैं आई एम स्टार्टिंग a particular venture with these 3 people and I will make sure कि हाँ I will manage things on my own, आप टेंशन मत लो. और पापा खाना खाते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला. और अगले दिन देन आई थिंक ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या हो गया, बिकॉज दे वर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड विल स्टार्ट अर्निंग, है ना. मतलब जॉब लग गई अच्छे से, रिश्तेदारों को बता दिया है बढ़िया जॉब लगी है, अब रिश्तेदारों को बताएंगे कि नहीं वो जॉब नहीं कर रहा है, वो स्टार्टअप कर रहा है. एंड बैक इन 2018 वो स्टार्टअप वॉज नॉट अ बज़वर्ड, है ना. कोई ऐसा नहीं था हर बंदा स्टार्टअप कर रहा है. जैसे आज की डेट में स्टार्टअप इज अ बज़वर्ड, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ एंटरप्रेन्योर. उस समय पे देयर वाज नॉट सो मेनी कंपनीज बीइंग फंडेड. उस समय पे लोगों को पता नहीं था इसका क्या फायदा होगा, क्या क्यों करते हैं ये लोग. बट द नेक्स्ट डे ही केम एंड ही सेड कि जो भी करना अच्छे से करना, पुट योर एवरीथिंग इनटू इट एंड समथिंग गुड विल हैपन. एंड ही वाज करेक्ट, समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर श्योर. मेरे केस में मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया था इजीली. एक तो वो भी बिजनेस कर रहे थे, तो मैं भी आई वाज लाइक कि मतलब मैं भी करना ही चाहता हूँ बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैंने उन्हें ऐसे कन्विंस किया था कि देखो ट्राई करने दो आप मुझे, मेरे पास है सेविंग्स, मैं कर लूँगा कुछ कुछ मैनेज कर लूँगा. एंड सेकेंडली आई थिंक मैंने उन्हें ये समझाया था कि यार आईआईटी की डिग्री है तो जॉब लग जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि मैं अब जॉबलेस बैठने वाला हूँ, कभी भी कुछ नहीं होगा तो आई विल फिगर आउट समथिंग, मैं जॉब कर मिल जाएगी मुझे इजीली और मैं ज्वाइन कर लूँगा. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है लाइफ में इसकी वजह से. बट आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, आप मुझे करने दो. एंड दे वर क्वाइट सपोर्टिव उस टाइम पे. इन माई केस तो मैंने अपने पापा को तो नहीं बताया था, मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि मैंने ये कर दिया है. और मैंने करके ही बताया था क्योंकि उससे पहले बता देता तो वो करने देते नहीं. उन लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि मेरी फैमिली में हर कोई एक सैलरीड एम्प्लॉय ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ पहले भी किसी ने कभी कुछ ऐसा किया हो. सो इट वॉज अ बिग शॉक फॉर देम एंड इट वॉज डेफिनेटली नॉट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. सो येस, उन लोगों को टाइम तो लगा कि उसके बाद अल्टीमेटली व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट आफ्टर इवन अ ईयर, then they had to accept it and they were okay with it कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसने किया, इतना बड़ा स्टेप लिया, पर चलो अब सही चल रहा है, कुछ तो कर रहा है. So in my case it was opposite of that of Harsh, I think, right? मेरे परिवार में everyone is like business family oriented and first cousins were also involved in the business doing something. So it didn't come as a shock to them that I really want to do something like that and build something from scratch. But again, they had their fair set of questions because they're very ऐसे धंधा oriented and that how will you figure out your finances oriented. So they had their fair share of questions कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे, what is your thought process behind it. But again, fairly accepting given that I gave them a similar reason यार कि हम लोग सब ऐसे fortunately privileged enough हैं कि we will be able to land a job based on
our credentials, our skills, be it just soft skills, whatever we have learned till now, we will land a job to actually survive. And the career is long enough. We just started on our careers, right? So risk taking ability was fairly higher. कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी जॉब छोड़ रहे हो आप एंड यू आर मेकिंग क्रोर्स ऑफ सैलरीज एटसेट्रा विच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट बिग. ऐसा नहीं था. इट्स लाइक यूर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड इवन इफ आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स यू स्टार्ट अ जॉब अगेन, यू विल स्टिल बी एबल टू फिगर इट आउट इन योर करियर कि कैसे आगे बढ़ना है. आई थिंक वी ऑल्सो हैड अ कार्ड इन आवर हैंड, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि 10th तक मेहनत कर लो, ऑल गुड फ्रॉम देयर. 12th में मेहनत कर लो, ऑल गुड फ्रॉम देयर. देन माय फादर सेड कि बस IIT निकाल लेना, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा. तो आई यूज दैट पर्टिकुलर कार्ड ऑन हिम कि आपने बोला था IIT निकाल लो, उसके बाद कुछ नहीं कहोगे, तो अब थोड़ा टाइम मुझे देखने दो खुद. जैसे आपने बोला कि मई में आपने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद यू गाइस स्टार्टेड द मार्केट रिसर्च. तो क्या जर्नी वो थी? व्हाट रिसर्च डिड यू गाइस डिड? क्या आइडिया था भी पहले कि नहीं था, कि कैसे बना आइडिया? था अगेन. So I would start by saying amateur entrepreneurs, right? When we start, it's a first time entrepreneur, right? You got to make a lot of mistakes, etc. होता है, सबके साथ होता है. हमारे साथ भी हुआ था यार. When we started, we were fairly clear about trying to tap into this market, right? How can we solve this problem statement कि 80-90 लाख ग्रेजुएट निकल रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, बेरली 8-10 लाख लोगों की नौकरी लग रही है इनमें से, बाकी सब आइदर गवर्नमेंट प्रेप, गेट, दिस दैट, a lot of different things which they are trying to do, but what outcomes are they getting at the end of that also is a very big question mark. So problem statement was wide and clear that this is big, and plus we all felt that since we are very close to college, fairly recent, have seen the freshers entry level hiring market, our friends have been in all sorts of colleges, had some understanding there. So we had this confidence कि ठीक है, we have awareness and understanding of the problem statement at least. और journey start ऐसे हुई थी that we started brainstorming ideas, right? Because this was number one mistake. We thought that we come and we fixate with an idea which can solve this entire problem, and then we start the business, right? So we used to keep brainstorming कि यार ये करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो इससे ये solve होगा या नहीं होगा. And one fine day, again, out of all these brainstorming conversations, we settled on this one idea in the sense कि ये तो full proof है. And the idea which we started off, right, was that कि अब ये market है इतना बड़ा, नौकरी नहीं लग रही, दो reason है. एक है कि अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच रही Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में मैक्सिमम बच्चों के पास, राइट? अब हम लोग IIT में थे तो हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज आई थी, और जो बाकी कॉलेजों में नहीं आती है. एंड सो वी कुड फिगर आउट दैट दिस इज अ गैप विच शुड बी सॉल्व्ड. एटलीस्ट द फोक्स, देयर आर टैलेंटेड फोक्स अक्रॉस the entire country, across colleges. You can give any tier to any college, but a student is a student, right? Someone who is talented, someone who has worked hard on themselves, they are skilled enough to get a job and probably do a better job than a tier 1, tier 2, tier 3, irrespective of the credentialing. तो idea ये था कि opportunity gap कैसे bridge करें. So what our idea was, coming to the point, कि we made a software. हमने देखा था कि हमारे कॉलेज में एक सॉफ्टवेयर यूज होता था to manage placements, जिससे काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता था कि एज अ स्टूडेंट आई कुड सी कि अच्छा कौन सी कंपनी आ रही है, कब टेस्ट है, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी, कब रेज्यूमे अप्लाई करना है, टेस्ट में क्या आएगा, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया मैं, अच्छा क्या हुआ. तो एवरीथिंग वाज मैनेज थ्रू अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विच मेड इट फेयरली स्ट्रीमलाइंड, which was not the case with most of these colleges. And what we could see is that ठीक है यार, not having this software is useless. मतलब why is a college not using a piece of software like this? Because it solves so much manual effort and labor. Our idea was that we'll go ahead and create a platform for these guys, which would help the college streamline their placements, number one. And secondly, through this platform, since hundreds of colleges can use this platform, we get the opportunity to actually partner with companies and get exposure to all of these college students for these companies and opportunities. तो clear था कि यार अगर आप hire कर रहे हो, if you want to hire 50 people, 100 people, 500 people in a year, you want to hire freshers, you are going to be picky and choosy about, I can visit only 20 colleges, I can visit only 50 colleges, because I simply don't have the bandwidth to go to a 500 colleges and figure out where is the best talent, right? So company would only be able to tap into a certain number of colleges and the talent pool which is present in those colleges.
तो आइडिया यही था कि यार कंपनी के लिए तो विक्ट्री है, कंपनी को लिटरली प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग डालनी है अपनी, एंड दे गेट एक्सपोजर टू टैलेंट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट. एंड फॉर कंपनी द हायरिंग बिकम्स ईजियर एंड द काइंड ऑफ टैलेंट दे कैन गेट बिकम्स बेटर. एंड दिस इज एग्जैक्टली समथिंग जो शायद हमें जॉब में कंसल्टिंग में नहीं मिला था, कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर जब यूज करता है तब क्या चैलेंज आता है, राइट. सो हाउ दिस स्टार्टेड वाज we started a market research and pitching, right. हम लोग अपना एक V1 of the platform, MVP of the platform जो था, we used to take it to colleges. This is 2018 2019, so everything was offline, pre-COVID. So we used to actually go down to cities, we used to stay there for a couple of days, we used to meet with all sorts of colleges there. जितने colleges उस city में, हम वहाँ पे जाके उनसे बात करेंगे, pitch करेंगे. We used to pre-book some seminars with some of these colleges कि यार we would want to talk to students around this topic and we can help them on get a better understanding of how they can do better in their careers at least. And that used to be an entry point to get a better understanding of our student audience. What are they really aspiring for? उनकी क्या problems है? Parallelly college की क्या problems है? Right? If you speak to the college director, the placement cell, how are their placements currently going? Are they able to place 20% people, 30% people, right? Because colleges will definitely advertise 99.99% placement rate and all that, but we all know the reality. तो मतलब So I will tell you one thing. तो मैं बताता हूँ, when the first time we went to a particular college, it was in बरेली, तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमने पूरा का पूरा सेस बना दिया है, हमें आगे का भी पता है, हमें पीछे का भी पता है. एंड देन वी वर सिटिंग विद द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड हमने पूरा उसे प्रोडक्ट दिखाया. सो मी एंड यश वेंट, दिस वॉज इन फर्स्ट वीक ऑफ जून आई थिंक. और फिर लास्ट स्लाइड थी प्राइजिंग वाली स्लाइड, एंड एज सुन एज द प्राइजिंग स्लाइड केम अलॉन्ग ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही गेव अस a very clear picture कि none of the colleges will pay for this particular solution at the moment, because the problem is much bigger than this, है ना. उसके बाद भी I think उसके बाद जितने भी colleges में हम गए हैं, collectively we have been to more than 650 colleges in North India. Easy. है ना. ये रोड ट्रिप होती थी हमारी, तो रोड ट्रिप करते थे, सुबह उठते थे, कॉलेज विजिट करते थे, शाम को भी यूज टू कलेक्ट ऑल द डेटा, क्या क्या इनसाइट्स आई, क्या क्या हुआ, डिनर करा, सो गए, क्योंकि सुबह फिर से टाइम पे उठ के आपको ट्रैवल करना है. इस तरीके से व्हेन वी वेंट टू ऑल द कॉलेजेस और सब कॉलेजेस के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, उनके डायरेक्टर्स, उनके स्टूडेंट्स से बात करी, तो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई. और उसके बाद वी वर ऑल्सो लूप्ड इन विद द कंपनीज, करेक्ट. तो कंपनी के एंड से क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के एंड से क्या प्रॉब्लम है, कॉलेज के एंड से क्या प्रॉब्लम है. तो वो या ब्रूट फोर्स थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज ऑल ब्रूट फोर्स, बट इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर अस. वाघा बॉर्डर से 10 किलोमीटर एक दूर कॉलेज है, मैं वहां पे भी गया हूँ टू अंडरस्टैंड उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. तो वी कवर्ड द होल लैंडस्केप. वी वर लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया ड्यू टू बिकॉज साउथ इंडिया में it was a bit expensive for us to go to South India via flights, क्योंकि sustainable भी रखना था. पर yeah, South India के colleges से we were also connected, we were making sure that we are getting insights from that front as well. पर हाँ, तो that was a long journey. We figured out कि करना क्या है, कैसे करना है, from the day when we were laughed at, and now we are trying to solve the problem which the colleges are not able to solve. कैसे figure out हुआ फिर finally कि Yeah, this I think is it is not a finally वाला moment, to be very honest. It's a very iterative process, right? कि आप college के पास गए, SAS लेके गए, right? SAS is like the piece of software which we had created for them, and वो लेके गए, you realize that अच्छा इसकी value इसको है ही नहीं. He is okay to put in the manual effort and put reminders 100 times because he has 10 people employed under him. He will make them post every company on a WhatsApp group, on a Google form, collect data, send data, coordinate everything operationally, and he's not valuing this piece, right? But then you got to understand what does, ऐसा नहीं है कि मैंने solution बनाया तो तेरे को लेना ही है क्योंकि ये better है, ये नहीं होता ना market में. You got to understand what is he actually, like what Y Combinator says, right? Make something people want. So what does he really want? The product, the SaaS product which we had thought कि college अपने आप इस पे बच्चे आएंगे, apply करेंगे, companies वो करेगी and everything would be productized, wasn't happening. But you still have to move the needle, right? So all of this was happening manually at one point of time also, because half the students are not applying through the platform. You still need the students to apply because the company has to hire. And so इसमें रियलाइज हुआ कि अब जब when we used to do these pool campus drives, हमें दिखता था कि यार 300 बच्चा है, company wants to hire 50 people,
but they ended up hiring only 7 people, right? And again, we were fairly always lean as entrepreneurs, right? क्योंकि पहले तो we didn't have a lot of savings, right? We had just worked for a year in the industry, had some amount of savings which couldn't pull through everywhere. So we would find opportunities कि यार if we can start making some revenue, that is important, मतलब that is critical for us also. And तो कंपनी को हम वही कि 8.33% जो स्टैंडर्ड चार्ज है HR एजेंसी का, उसी की तरह ऑपरेट करके एटलीस्ट चार्ज तो करते हैं, एटलीस्ट सम रेवेन्यू शुड स्टार्ट कमिंग इन. सो अब प्रॉब्लम ये है कि यार 300 बच्चे लगाए मैंने, आई वेंट देयर, आई सेट इट अप, आई हैंडल ऑल द ऑपरेशंस, आई हैड सम कॉस्ट देयर, एंड अगर 7 ही बच्चा एब्जॉर्ब होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट रेवेन्यू विच आइडियली आई वाज थिंकिंग ऑफ. एंड लुकिंग एट दैट लो कन्वर्जन रेट is when we get the next set of insights कि हाँ यार, not just opportunity gap, training gap, the right quality of education gap is also very much present, right? And I think it's not about the right quality of education alone, but also the exposure gap, I would say, right? The students are not really exposed that what are the skills they need to work on from early on. जैसे हमारे सीनियर्स ने बता दिया था कि 4th ईयर में आए हो, कंसल्टिंग की तैयारी ऐसे कर लो, right? That level of understanding, guidance, exposure was there for someone in tier 1 colleges, which was not present in a tier 3 college at all. That is the only reason. It's not like हमें IIT में मेरे को नॉइस के कोर्स में मैकेनिकल में ऐसा कुछ पढ़ा दिया कि मेरी जॉब लग गई, राइट? दैट वाजंट द केस. इट्स मोर अबाउट द एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट विच वी वर गेटिंग एंड द रिसोर्सेस विच वी हैड एक्सेसिबल वेरी वेरी इजीली. कि मेरे को मॉक इंटरव्यू देना है तो मेरे सीनियर ने ले लिया. सो अपॉर्चुनिटी गैप वॉज देयर, अंडरस्टूड, राइट? उसके बाद समझ में आया अच्छा ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर गैप भी है कि इन्हें राइट गाइडेंस ही नहीं है, राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है कि ये लोग ये सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं इजीली. So that is the next set of insights which you unlock. So then, fortunately for us, we had a lot of all this 650 odd colleges हम मिले थे जा के, right? वहाँ से we had this understanding कि हाँ we had some relationships with these colleges, right? At least some of them were using our product, the SaaS platform, right? Even if not comprehensively, they had onboarded us on it. तो हमारा उनके साथ relationship था. So when we go there and tell them that boss, the conversion rate is low. And we think that if you give us your students to train, maybe for a few weeks, and we will train them on exactly these skill sets, which is the reason why they have not been able to crack these job opportunities, we might be able to help your students improve conversion there. Uske aage, then that is again a iterative learning process for us. For AccioJob, it has been a long journey, right? It has been like 4.5 years already of non-stop persistence and iteration, right? Yeah, so basically Yash just told the whole thing in a gist, है ना? तो लोगों को सुन के लग रहा होगा तुम्हें इट्स वेरी इजी कि मार्केट रिसर्च करी, स्ट्रेटेजी बनाई, हो गया. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. ये जितने हमने कोहॉर्ट चलाए हैं टू गेट फुल इनसाइट्स, ये सारे एग्जीक्यूट किए हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट किया है, मेकिंग श्योर टॉकिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु वाज पार्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कोहॉर्ट्स, टॉकिंग टू द कॉलेज पर्सन, टॉकिंग टू द कंपनीज, मेकिंग श्योर कि उन सबका व्यू पॉइंट हमें पता चले. उन सबसे भी हमें समझ में आया कि हाँ, कि नाउ द एस्पिरेशनल थिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट कि सेल्स का इतना एस्पायर नहीं करते स्टूडेंट्स, तो वो ऐसा नहीं हमने कहीं से सुना है. हमने जितने बच्चे थे कोहॉर्ट में उन सबसे बात करी है, ठीक है. एंड देन वी स्टार्टेड विद द आईटी थिंग. सो अगेन दिस वाज समथिंग वी वांटेड टू एग्जीक्यूट एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमें सही इनसाइट्स मिले. तो एग्जीक्यूट करना है तो अब 4 ही लोग थे, कैसे एग्जीक्यूट करें, है ना? तो जब भी एक एक करके 2-2 करके रजिस्ट्रेशन आते थे, एंड वेन एवर देयर वॉज सम कॉलेज जो अपना मेल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस से मेल जाता था ना, तो एक साथ 50, 60, 70, 80 रजिस्ट्रेशन आ जाते थे. एंड वी 4 यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी वर लाइक हुर्रे, आ गए 80 रजिस्ट्रेशन आ गए. तो या सो दिस वाज द होल प्रोसेस कि अब वो रजिस्ट्रेशन आए हैं, people are interested in this particular field, then to understand why they sort of registered for this test or registered for the course that is going to come. So yeah, the whole thing is very iterative, and more or less we believe in the fact that execute karo, implement karo. EdTech is a sector in which you have to make sure कि क्या स्ट्रेटेजी से इतना फर्क नहीं पड़ता. मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना इज द इजियर पार्ट. व्हाट आई थिंक इज द हार्डर पार्ट इज टू एग्जीक्यूट इट, द हार्डर पार्ट इज टू इम्प्लीमेंट इट, एंड द हार्डर पार्ट इज टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्पार्टिंग टू देम. और फॉर्चुनेटली हर्ष वाज द इंस्ट्रक्टर, तो वो कॉस्ट भी नहीं दिया पाया. हर्ष ने पूरा बैच पढ़ा दिया था. हाँ, तो पहले बैच का ऐसा था. तो आई वाज मोर और लेस मेकिंग श्योर दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग. Yash was the batch manager. Vishu was taking care of the placement side सारे colleges से, and Harsh was the person जो curriculum बनाता था,
दोपहर में, शाम को पढ़ाता था, रात को उसके बाद स्टूडेंट से और समझता था हाउ टू इम्प्रूव ऑन द सेम. तो द फोर ऑफ अस वर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. इसके अराउंड जो भी ऑपरेशंस होते थे, बाकी चीजें थे, आपस में डिवाइड करना. कस्टमर सपोर्ट वाज समथिंग वी वर टेकिंग केयर ऑफ, है ना. जितनी क्वेरीज आ रही है उन्हें सॉल्व करते रहना, जितने कॉल्स आ रहे हैं बारी बारी उसे उठाना, मेकिंग श्योर दैट ईच अभी what 200 people are doing right now, the four of us was doing the same things. All of those parts were there, but the scale was very small. The mission that we had and the vision that we had for it is still the same. कूल है. सो आई थिंक काफी सीरियस क्वेश्चंस हो गए. अब थोड़े क्वेश्चंस जो टीम के भी थे वो भी हम ले लेते हैं. अब अगेन अभी मैं बोल रहा हूँ, शब्द उनके हैं, तो डोंट टेक इट ऑन मी. तो संभल के पूछना, सवाल याद रखा जाए. हाँ. तो क्विक क्वेश्चंस हैं, कोई भी आंसर कर देना. कई कॉमन क्वेश्चंस हैं तो सारे कर देना. थोड़ा बेसिक से करेंगे कि व्हाई द नेम AccioJob. So we actually were sitting together thinking of names. और ऐसा है नहीं कि एक सेटिंग में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए ना. सो वी वांटेड टू बी डिफरेंट एज वेल. एंड वन थिंग वी वांटेड वाज कि यार डोमेन जो ले रहे हैं ना, उसके एंड में वी वांट .com टू बी देयर. सो दिस वाज आवर ओनली पॉइंट दैट वी ऑल अग्रीड ऑन. उसके अलावा बाकी इट्स एन ओपन फील्ड. All of us used to just think of names. We used to WhatsApp each other. We used to sit and discuss कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है. And even the name AccioJob, which was suggested by one of our other flatmates, who was also our college mate, he suggested this name, and we took this name as something कि उस पे consent build हो गया है कि it's fine, let's go with this name. And we can always revisit it later maybe. तो ऐसा होता था. I'll tell you, I'll add more here, right? तो इसमें ऐसा था कि when we actually came down to AccioJob, we were like कि यार सही लग रहा है सुनने में. It's got a nice ring to it. It makes sense because if you know the Harry Potter reference, Accio is to seek, right? So to seek a job made sense. We were getting AccioJob.com also. We were हमारे साथ ये clear था कि यार .com is like we mean business, boss. We're here to deliver. And so that is why we wanted .com. तो AccioJob.com is like कि अभी विजिटर तो है ही नहीं साइट पे, राइट? कितने ही बच्चे आते हैं, 50-100 बच्चे ही तो आते हैं अभी. तो जब स्टार्ट कर रहे थे तो वी आर लाइक कि ठीक है, अगर कुछ बहुत अच्छा आएगा विच वी ऑल अग्री टू कि यार ये परफेक्ट है, तो चेंज कर लेंगे हम लोग. अभी तो क्या ही स्केल है. AccioJob के अलावा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ऑफ AKIO जॉब्स एंड ACIO जॉब्स एंड ASIO जॉब्स इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड. कि बच्चे मिस प्रोनाउंस करके कुछ और भी कर रहे हैं शायद. तो अब क्या करें, अब तो इतना स्केल है, अब नाम नहीं बदल सकते यार. मेरा पूरा इंस्टाग्राम पेज, मेरा यूट्यूब चैनल, लोगों में इतनी awareness about AccioJob, everything becomes zero again probably, and I need to build it up. So हमने उसका एक बेसिक हैक किया कि okay, someone can mispronounce it and missearch it, probably misspell it, तो let's just buy out all the other domains also. कि हम AKIO जॉब से भी यहीं डायरेक्ट कर देंगे, ASIO से भी यहीं डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि हम किसी को लूज ना करें. अगर कोई मिसप्रोनाउंस भी कर रहा होगा तो वो आ जाए हमारे पास. So that was like the minor hack we put in. तो अगला क्वेश्चन विशु के लिए. तो क्या सीन्स थे आईटी में डेटिंग के, थोड़ा आप बताओ. मैं नहीं करता था भाई किसी को. I was single. तो थोड़ा ऑडियंस को पता चले ना मैंने क्यों पूछा है आपसे. तो थोड़ा बता दो. मैं देता हूँ बैक स्टोरी. तो विशु इज द क्यूटेस्ट को-फाउंडर, इज द टैग फॉर विशु, राइट? तो इसीलिए सवाल विशु से पूछा गया है. बट विशु इज एंगेज नाउ, तो अब ज्यादा मिस्ट्री नहीं है. बाकी सबके क्या सीन्स थे हर्ष? मतलब जो रेशियो होता है वही, मतलब आईआईटी में ऐसा होता है कि 720 लड़के होते हैं, 80 लड़कियां होती हैं. तो उस रेशियो पे भी अगर तुम एक और फिल्टर लगाओगे उसके बाद की पर्सनल प्रेफरेंसेस मैच होनी चाहिए, तुम्हें मजा आना चाहिए साथ में टाइम स्पेंड करने में, तो कोई नहीं बचता है. तो मेरी बंदी आईटी की है, वैसे बैचमेट ही है, बट हम पहले ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे. और सबसे ज्यादा भाव कौन किसको मिलता है इन टर्म्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर? अपन क्यूट घर में ही रहते हैं भाई, हम ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना. अब तो एंगेज हो गए वैसे. वैसे ऐसा कुछ नहीं है. क्यूट गाय. और सबसे लेजी कौन है इधर? सबसे लेजी तो हर्षी होगा यार, बाय फार. आई थिंक मतलब वो टेक डीएनए है. मतलब आई थिंक इन ऑफिस द टीम विल आल्सो एग्री. सबसे पहले शॉर्ट्स पहन के ऑफिस में आने वाला पार्ट भी आई थिंक टेक टीम. जीन्स तो सर्दियों में पहन रहा है यार. इसमें कुछ नहीं बोल सकता मैं, सब सच है. ये तो देखा है. एंड अभी लाइक हु हैज बीन द बेस्ट हायर फॉर यू गाइस? एक एक करके बता दो. ये तो बहुत ही अनफेयर क्वेश्चन है. 170 लोग. For me, these three. Same answer.
ये तो बिल्कुल सही नहीं है क्वेश्चन. बहुत सारे लोग यार, and there is like meaningful contribution by everyone across the board right now. There are teams executing at a very fast pace. So I don't think ये fair सवाल होगा. If you ask us interesting hiring stories, we definitely have, right? For example, Lakshit, right? So we had Lakshit. Lakshit was someone who actually, like हम लोग इसके पहले जो sales training cohort वगैरह कर रहे थे, तो Lakshit was someone who was part of that cohort, right? And later on, Lakshit got placed in some other company in a HR role, and then AccioJob students, the tech cohort students, were getting hired. So Lakshit's company hired our students, and that is when Lakshit got in touch with us again. So then we were like, Lakshit is a good guy to have in the placement team. He's been a HR, he's got some experience, he's hiring tech professionals. So we got Lakshit and hired Lakshit. We had people who had reached out to us in very unique ways, right? Through podcast, through some random interaction. Some people who are looking to be a part of the cohort and then reached out, I want to be a part of the mission. Some people who could just relate to what we were trying to build. तो हायरिंग स्टोरीज काफी सारी रही है. Netflix की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है? Oh yeah. So the team which is helping us shoot this podcast, which is the iPlix team, right? So how we got in touch with iPlix is also an interesting story. So Pavitra, who's also leading social media with them, actually randomly saw us one in the office के नीचे एक subway है, तो उसने AccioJob शायद हमारे हुडी को टी-शर्ट को देखा होगा, एंड उसको पता चला कि AccioJob क्या है, उसको नाम शायद सही लगा, तो उसने गूगल कर लिया होगा हमें, तो उसने देखा ये सही काम करते हैं, एंड ही माइट हैव फॉलोड अस ऑन लिंक्डइन और समथिंग, आई डोंट नो, बट देन वी हैड सम opening related to marketing and Pavitra applied to it. I was like, ये लड़का देखा हुआ है, this guy seems like a celebrity, है कहीं तो है ये, and फिर I didn't follow a lot of his content, but then later on when someone saw from the team, उन्होंने बोला कि this is okay tested, and then of course I reached out to Pavitra. I was like कि अगर ये आ रहा है टीम में तो अच्छा आइडिया लग रहा है, but उल्टा उसने he played the smart card. He actually pitched his agency to us, and but yeah, good to be working with the iPlix. Very good lead generation by Pavitra, I think. Cool है. और डिसीजंस कैसे लेते हो? लड़ाई वलड़ाई तो होती होगी, तो क्या होता है फाइनल? मेरे हिसाब से at the time of when we take decisions, and whenever all of us have different perspective on certain things, but at the end, what is best for the student and what is most logical and can be implemented effectively, that wins. So we try to see कि अच्छा ये बड़ा decision है. Is it possible for me to identify a small experiment that will allow me to test this particular thing? If it is possible, then it's a no-brainer for us to go ahead and check it out once and see what the results are. मतलब हाँ, ऐसे हीटेड तो होती हैं कॉन्वर्जेशन बहुत सारी, बट ये बेस्ट पार्ट है आई थिंक, बिकॉज अपन अब 10 साल से साथ में हैं शायद, राइट? तो बहुत हीटेड होती है, बट उसके बाद भी सबको पता है कि लॉजिक जीत जाना चाहिए, और कंपनी के लिए क्या सही है वो जीत जाना चाहिए, और किसी को कोई ईगो पे नहीं लेनी है कुछ भी चीज़. मतलब फाइनली लॉजिक शुड विन. अब रात में घर साथ में ही जाना है. ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. बकेट लिस्ट क्या है सबकी 2023 के लिए? घर वाले शादी करा देंगे मोस्टली. ये तो है ही. और आई थिंक इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो अभी आई थिंक वी आर सर्विंग 5,000 6,000 स्टूडेंट्स, एंड वी वांट टू टेक इट टू लाइक tens of thousands of students this year, and we'll try to bridge that gap that we actually want to. I think one of the bucket list that that Yash also mentioned earlier is to get 5,000 students placed in 2023. So that is, I think, in the bucket list for all of us. Cool. I think last question, or again on a lighter note, again not from me, from the team. क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे का? Oh. So I think out of the 4 of us, 2 of us are still unfortunate but and single. So we'll have to find one. We'll have to find one and then do it. But I don't think we'll be able to find enough time first for that. We are working on strict deadlines here. I think 14 Feb weekday है, तो पता नहीं चलेगा अपने को. वैलेंटाइंस डे आया चला गया, नहीं पता चलने वाला है. ये आपने देख लिया पहले की वीकडे है, ये आप देख चुके हो. अब यार डेट्स का हिसाब रखना, यार डेट्स का हिसाब रखना पड़ता है. मैं यही क्वेश्चन था, वीकडे है या वीकेंड है उस दिन? डेट्स का हिसाब रखना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि कैलेंडर कैसे रहने वाला है स्टूडेंट्स का. नहीं यार, दिस इज ट्रू, दिस इज
चलो आई थिंक तू बता दे तेरा क्या प्लान है. मैं तो इधर आके काम ही करूंगा, बाकी आप बताओ. नहीं तुझे छुट्टी चाहिए तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है. देख लेंगे. So guys, this brings us to the end of AccuJob's very first podcast. I hope you got to know about what we do here at AccuJob, about our team, about our founders. So do like, share, subscribe, and do comment down below what you liked about the podcast and what more would you like to see in the future from us.